Hello everyone, now again welcome in video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is NAC. NAC, as you know that the autonomous body of the India related to the higher education, and NAC that means totally focus or emphasize the quality based education. यह पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं नैक पर आज बात करने जा रहा हूँ, यह गवर्नमेंट एजेंसीज के अंतर्गत आते हैं, जो कि स्वायत्त संस्था के अंतर्गत है। भारत सरकार की यह हायर एजुकेशन जो है, उच्चतर जो शिक्षा होती है उसकी गुणवत्ता को ध्यान रखती है। यह टॉपिक एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर एजुकेशन स्टडीज में पेपर 3 है और यह यूनिट 4 से संबंधित टॉपिक है। मैं आपसे नैक से संबंधित उसकी जो संगठन है उसके बारे में भी बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ उसकी भूमिका और भागीदारी क्या है उसे भी मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। नाउ अगेन वेलकम टू वीडियो लेक्चर क्लास एमएड सेमेस्टर 1 पेपर एजुकेशन स्टडीज। नाउ फर्स्ट आई विल डिस्कस National Assessment and Accreditation Council (NAC) in English way. First, I will introduce the topic, that is NAC. NAC is often considered as the brainchild of UGC. The main purpose and core aim of NAC was to address and monitor the issue of degradation in quality of higher education in India. NAC is an autonomous institution established by the UGC in 1994, situated at Bangalore. The headquarters is Bangalore. The prime agenda of NAC is to assess and accredit institutions of higher learning with all objective of helping them to work continuously to improve the quality of education. Now, criteria for assessment. 7 most important criteria. Number 1, curriculum aspects. Number 2, teaching, learning and evaluation. Number 3, research, innovation and extension. Number 4, infrastructure and learning resources. Number 5, student support and progression. Number 6, governance, leadership and management. Number 7, institutional value and best practices. Now, role and involvement of National Assessment and Accreditation Council (NAC). Number 1, quality sustenance and promotion by sensitizing institutions to concepts such as credit transfer, student mobility, mutual recognition. Number 2, networking among accredited institutions in order to promote exchange of best practices. Formation of quality circles for follow-up and accreditation outcomes. Number 4, state-wise analysis of accreditation results for policy initiative. Number 5, promoting the concept of lead colleges and cluster of colleges for quality initiative. Number 6, project grants for accredited institutions for quality innovations. Number 7, financial support to accredited institutions for conducting seminar, conferences, workshops on quality issues in higher education. Number 8, developing international linkages for mutual recognition. Number 9, collaborating with other national professional bodies for accreditation of specialized subject. Number 10, NAC Distance Education Council joint venture for accreditation of open universities and correspondence courses. Number 11, state level coordination committees for accreditation. Number 12, national consultative committees on accreditation in different disciplines. Number 13, interaction with other agencies to develop a national qualification framework. Number 14, development of database expertise and infrastructure. Number 15, training programs for quality promotion and excellence in higher education. Number 16, NAC NCT joint activity for self appraisal and accreditation of teacher education institution. And the last one is 17, post accreditation review and quality sustenance in
एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशंस। अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक। सर्वप्रथम थोड़ा नैक के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, यानी इसका परिचय दे दूँ कि नैक एक्चुअल में क्या है। नैक के बारे में, दैट मीन्स राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद को यूजीसी का मस्तिष्क माना जाता है। नैक का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करना या ध्यान रखना और निगरानी करना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद 1994 में यूजीसी द्वारा स्थापित यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। नैक का मुख्य एजेंडा यानी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का मुख्य एजेंडा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार काम करने में उनकी मदद करने के लिए सभी उद्देश्यों के साथ उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकलन करना और उन्हें मान्यता देना है। नैक मुख्यतः हायर एजुकेशन, दैट मीन्स जो उच्चतर शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को और साथ ही साथ आकलन करना और मान्यता और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित करता है कि गुणवत्ता भारत की उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक तत्व है। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब आकलन के लिए मानदंड क्या क्या हैं नैक के। नंबर 1 पाठ्यक्रम पहलू, नंबर 2 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, नंबर 3 अनुसंधान परामर्श और विस्तार, नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बनावट और लर्निंग रिसोर्सेज, दैट मीन्स अधिगम संसाधन, नंबर 5 छात्र समर्थन और प्रगति, नंबर 6 संगठन और प्रबंधन, नंबर 7 स्वस्थ अभ्यास या इसको बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेज, और तकनीक तथा स्वस्थ अभ्यास इसको हम कह सकते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक के निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी हैं। नंबर 1 संस्थानों को क्रेडिट ट्रांसफर, स्टूडेंट मोबिलिटी यानी छात्र जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, आपसी मान्यता जैसी संवेदी संस्थाओं द्वारा गुणवत्ता निर्वाह और प्रोत्साहन। दूसरा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों के बीच नेटवर्किंग का काम करना। एक मान्यता परिणामों के फॉलो अप, दैट मीन्स कैसे उसके साथ चलना है सभी को, के लिए गुणवत्ता मंडलियों का गठन करना। नीतिगत पहलों के लिए मान्यता परिणामों का राज्यवार विश्लेषण करना। नंबर 5 गुणवत्ता पहल के लिए प्रमुख कॉलेजों यानी प्रमुख जो महाविद्यालय हैं और कॉलेजों के क्लस्टर यानी जो बंच के रूप में, ग्रुप के रूप में कॉलेज हैं की अवधारणा को बढ़ावा देना। 6 गुणवत्ता नवाचारों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए परियोजना अनुदान प्रदान करना। नंबर 7 उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मुद्दों पर सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशाला आयोजित करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों को वित्तीय सहायता देना। नंबर 8 आपसी पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना। नंबर 9 विशेष विषयों की मान्यता के लिए अन्य राष्ट्रीय व्यावसायिक निकायों के साथ सहयोग करना। नंबर 10 नैक यानी दूरस्थ शिक्षा परिषद एवं ओपन जिसको कि खुला विश्वविद्यालय और प्रचार पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए संयुक्त उद्यम। 11 प्रत्यायन के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करना। 12 विभिन्न विषयों में प्रत्यायन पर राष्ट्रीय परामर्शदात्री समितियों का गठन करना। 13 राष्ट्रीय योग्यता ढांचे को विकसित करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहभागिता। 14 तारीख आधारित यानी डेट के अनुसार विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचों का विकास करना। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन और उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। 16 नैक और एनसीटी स्वयं मूल्यांकन और शिक्षा संस्थानों के प्रत्यायन के लिए संयुक्त गतिविधियां। और 17 मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट प्रत्यायन यानी असेसमेंट के बाद समीक्षा और गुणवत्ता का निर्वहन करना। इस प्रकार से मैंने इसे स्पष्ट किया। इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने नैक से संबंधित, दैट मीन्स नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के बारे में, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के बारे में विस्तार से मैं चर्चा की। साथ ही साथ उसका एक छोटा सा परिचय और उसकी भूमिका और भागीदारी के बारे में। बट मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नैक की ग्रेडिंग आवश्यक है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए भी नैक जरूरी है। साथ ही एक दो बातें और थी जिसमें कि था कि राज्य स्तर पर समितियों का गठन करना, कॉलेज का एक ग्रुप, क्लस्टर ग्रुप में निर्माण करना। इसका एक उद्देश्य ये है
कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि 7 एस्पेक्ट्स के बारे में आकलन का आधार बताया गया है। उन सातों पर जो है वो SSR तैयार करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि आप पिछले 3 वर्ष के सभी चीज़ों को विस्तार से दिखाते हैं, उसका PPT तैयार करते हैं और अपने जो वेबसाइट होती है उस पर अपलोड करते हैं, ताकि NAC की जो संबंधित जो समितियां हैं, टीम है, उसका असेसमेंट कर सके, आकलन कर सके, देख सके और एक एक चीज़ों का आने के बाद बारीकी से आकलन करना, सिर्फ इस चीज़ को, जिससे कि छात्रों की जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से कॉलेज का जो आधार है वो कैसे विकास हो रहा है और छात्रों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। इसलिए NAC कॉलेज के विद्यालय महाविद्यालय का विकास के लिए, छात्रों का विकास के लिए और समाज में कॉलेज का एक स्थान के लिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए अति आवश्यक है। आवश्यकता सिर्फ इस चीज़ की है कि कैसे NAC के बारे में समझे, जाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। अब तक जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह जल्द से जल्द यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, वीडियो लेक्चर आपको तुरंत उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।